Hello everyone. So now this is the lecture 2 for diagrams. इसमें हम करने का क्या ट्राई कर रहे थे हमने लास्ट क्लास में लाइक वी मेड कपल ऑफ डायग्राम्स. हमने अराउंड लाइक 8-10 डायग्राम्स बनाए थे और वो हम ऐसे डायग्राम्स बनाने की कोशिश कर रहे थे विच कैन बी यूज इन योर पार्ट बी फॉर एनएलएस बीए प्रोग्राम, है ना. तो अब जैसे हमको मालूम है इसमें शॉर्ट आंसर्स आने हैं और एसेज आने हैं एंड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर कमिंग फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड वर्ल्ड themes, and also the essay would be coming from history, political, economical or some social issue. In essays we would be getting 4 options. Out of those 4 options we have to attempt a single essay. Everyone knows that, like I have said this multiple times, told this multiple times. And short answers, we would be given 4 short answers to be written into 150 words, wherein the topic would revolve around this. तो हमारी strategy क्या थी कि we were making fodder materials for our short answers and essays. हम ऐसे टेम्पलेट्स ट्राई कर रहे हैं जो टेम्पलेट्स बहुत जेनेरिक हो और उसमें आप थोड़ा सा भी चेंज करके यू कैन राइट स्पेसिफिक आंसर्स. सो वी आर मेकिंग सच लाइक वी आर मेकिंग अराउंड 50 such templates which would be used across your short answers questions. And also the same strategy is being adopted for your essay part, wherein we are writing around 25-30 essays, most expected ones, and the knowledge that we derive from these essays coupled up with the knowledge that we derive from these short answers would be cumulatively used while you are attempting your part B section of NLS BA. A lot of students have been giving very positive reviews. अभी बाकी लेक्चर पे आते हैं. आज का एजेंडा था डायग्राम्स. Like we are done with the lecture 1 of this. This is the second part. In this lecture, we would be starting with this diagram for Quad. So let's say there is this question coming for Indo-China strategy or anything related to India, US, or let's say China. And we can also add the angle of Japan here. So we'll make this map of Quads definitely in a sheet of paper, whether be it in short answers or whether the question is coming in your essays. See how do we do this now? Here we have Australia, here we have, let's say, Japan. Now this is India, and this is somewhere here, let's say US is there. Now if you would join all of these points, that makes a quadrilateral if the map is like drawn pretty well. So this makes a quadrilateral. Hence we call this quadrilateral. Like we call this Quad. Abhi Quad kya hai? Quad is a group of like strategic organization made by 4 countries that are India, Japan, China, and India, Japan, your US, and then here comes your Australia. So all of these 4 countries are coming together as to counter the increasing significance of the Chinese in the Indian Ocean region. Also, we can draw this timeline map for Quads there. Write down in 2004, all Quad members come together. Members come together. In 2004, all Quad members come together. Now the concept of Indo-Pacific is given in the year 2007. Concept of Indo-Pacific as to the region where the Chinese have been increasing their significance. Concept of Indo-Pacific is there. Now, in like there is a sort of dormancy from the phase of 2007 to 2017. Not a lot happens between these years among the 4 countries. But in the year 2019, eventually the first summit level talk. Now summit level talk means any talk wherein the senior most leaders of the countries are meeting. So let's say if there's a talk between the PM and the presidents of the country, then it can be termed as a summit level talk. The summit level talk happens, and in 2021, the idea of Quad is conceptualized. So in case there is this question coming on the Indo-Pacific strategy, or let's say there is this question revolving around China and India's strategy to counter the Chinese increasing influence, we'll definitely make this timeline. See, all of this has to be used across your sheets because this will definitely help you increase a couple of marks in every question, and that will make the difference definitely. Now let's say one more data can be used. Write down mobile users. Write down mobile users.
and here write down internet users. Now we'll draw a graph, like we'll draw a bar diagram depicting as to the number of users. So here, to show how India has progressed digitally, or let's say technically also, we can draw this bar wherein we can show in 2014 there were only 39 million people who were owning a cell phone, while in 2019 this increased to around somewhere 600 million. So that means around 60 crore people are now were using mobile phones in 2019. Back in 2014, it was somewhere around 3.9 crores. So this was approximately 4 crore, and this was approximately 60 crore. This data can be used in any question wherein they are asking about the digital divide, or let's say the boom in technological sector of India, or let's say the boom of internet in India. Now comparing the internet users back from 2014 to 2019, we can draw this diagram, like this bar graph, wherein we show that around 200 million people were using internet back then, while in 2019 this can be shown as 636 million. So there is a huge jump in the internet base of India also. So this is something which can be drawn in any science related questions, or any question which relates to use of technology, or let's say the use of, or the viability of technology in the 21st century, or let's say how India, like how has there been financial inclusion in India. So let's say there is this question coming कि इंडिया में financial inclusion कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, लोग कैसे बैंकों तक पहुंच रहे हैं, लोग कैसे शेयर मार्केट्स तक पहुंच रहे हैं, ये सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से अचीव हो पा रहे हैं, थ्रू मोर एंड मोर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डेफिनेटली मेक. इसके बाद एक और बना लो, एक डायग्राम और बना लो. राइट डाउन विमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर, विमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर, वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर. अब देखो वुमेन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू एड्रेस दिस इशू आल्सो, बिकॉज दिस इज अ वेरी कंसर्निंग इशू कि लाइक इनफॉर्मल सेक्टर में यूजुअली जॉब्स मिलती हैं वुमेन को. तो देखो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि फॉर्मल सेक्टर में आपका पीएफ वगैरह आता है, देयर इज दिस सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच हैव टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द कंपनी. बट इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, आपके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, मैटरनिटी लीव जैसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं. तो now this is a concerning issue because a lot of women have been participating into informal sector, and we have to show a relationship as to how this affects the women. So write down patriarchy, like patriarchy leads to deprivation. Obviously भाई घर में अगर if it's like there's difference between boys and girls, या मेल प्रिविलेज ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, पेट्रियार्की होगी. मेल प्रिविलेज है तो women को क्या होगा, डेप्रीवेशन होगा. डेप्रीवेशन होगा तो उसको लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन मिलेगा, limited access to education milega. Secondly, there would be limited access to skills also. Now because there is lack of education, तो skill पे obviously impact पड़ना है. Then also since she lacks skills, she lacks education, तो formal job मिलने के chances कम है, formal sector would decrease. Definitely this will happen. Now because all of these three phenomena are happening simultaneously, this will eventually lead to what? This will lead to confinement of women इन इनफॉर्मल सेक्टर, है ना, ऑब्वियस सी बात है. इसके बाद क्या होगा, अब वो क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में आ चुकी हैं तो फिर वापस वही प्रॉब्लम, नो मिनिमम वेज, नो फिक्स्ड आवर्स. नाउ दिस विल इंपैक्ट देयर फैमिली आल्सो. नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, नो सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से पीएफ, प्रोविडेंट फंड. नाउ नो करियर ग्रोथ आल्सो, डेफिनेटली ना, करियर ग्रोथ भी नहीं होगी, नो करियर ग्रोथ. Now all of this will again lead to what? All of this will again lead to what? Deprivation. And once there is deprivation, definitely patriarchy shall prevail, और ये चेन वापस बन के आ जाएगी. अभी विमेन सेंट्रिक कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे में शॉर्ट आंसर में, तो ये बना के आना है ना, ये बना के आना है. ये यार एक एक दो दो मार्क्स का डिफरेंस डालेंगे सबके आंसर्स में, और मतलब बनाना ही चाहिए. बिकॉज अभी सोचो ना, इस एक छोटे से डायग्राम से वी आर एबल टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ आवर कंटेंट. अब हमारे पास 150 वर्ड्स है, और 150 वर्ड्स में लेट्स से वी राइटिंग 120 वर्ड्स एंड मेकिंग दिस डायग्राम समवेयर, तो कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, हमने कितना कुछ वी हैव एडेड इनटू इट. लाइक पेट्रियार्की विल लीड टू डेप्रिवेशन लीड्स टू लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेस टू स्किल्स, एंड द फॉर्मल सेक्टर shall prevail. Now since a lot of women will get confined into formal sector, there will eventually be no career growth, no minimum wages, no final like working hours, no social security.
दिस विल डेफिनेटली लीड टू व्हाट, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन से वापस में आप किस पे आ गए, पेट्रियार्की पे। तो इसको बनाओ, इसको नोट करो एंड डू वन थिंग, लाइक वंस वी आर डन विद द क्लास उसको प्रैक्टिस कर लिया करो, 3-4 बार बना के प्रैक्टिस कर लोगे, सो दिस विल गेट प्रिंटेड इन योर माइंड। अब इसमें एक डायग्राम और बनाओ, विशेष साइकिल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन इज अ ह्यूज कंसर्न। लैंड डिग्रेडेशन देखो, एक चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम्स बता रखी है, जब मैं अर्थ समिट वगैरह बताता हूँ तो मैं बताता हूँ 3 कन्वेंशंस 1992 में साइन हुए थे थ्रू यूनाइटेड नेशंस। वन वाज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द सेकंड वन वाज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, like United Nation Framework Convention on Climate Change, United Nation Convention to Combat Desertification, and then the third one was United Nation Convention on Biodiversity. So there were 3 agreements: United Nation Framework Convention on Climate Change, then there was United Nation Convention on Combating Desertification, and then United Nation Convention to Biodiversity। ठीक है, तो ये 3 हमारे अग्रीमेंट साइन हुए थे, और जब हमारे 3 अग्रीमेंट साइन हुए थे, दिस वाज हैपनिंग बिकॉज द लैंड वाज गेटिंग डिग्रेडेड। इसीलिए आप देखोगे स्पेसिफिकली हमने एक तो इसी के लिए बनाया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सो वी वांट टू कॉम्बैट व्हाट, लाइक वी वांट टू फाइट आउट व्हाट, डेजर्टिफिकेशन। व्हाट डज डेजर्टिफिकेशन मींस, अभी कहीं पे वेजिटेशन है, देयर आर प्लांट्स, देयर आर स्पीसीज, बट यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हो जाए वेयर the plants and the animals start getting extinct, or like the climatic conditions are not as such wherein a lot of life can prevail, तो वहाँ क्या होगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। any extreme form of condition like climatic condition wherein it becomes very difficult for survival is desert। now desert can be cold as well as hot deserts। यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा लेट्स से लद्दाख, और यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, थार, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम कैसे फार्मर को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम जब भी लैंड डिग्रेडेशन पढ़ते हैं हम इसको सिर्फ एनवायरमेंटल इशू के हिसाब से देख लेते हैं। ये एक एनवायरमेंटल इशू है कि लैंड डिग्रेड हो रहा है, वेजिटेशन कम हो रही है, स्पीसीज प्लांट्स फ्लोरा फौना एक्सटेंट हो रहे हैं, बट हम इसको कभी भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते, फार्मर की इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे बहुत ज़्यादा है, और एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन द विशियस साइकिल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, विल मेक दैट। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, लैंड डिग्रेडेशन हैपेंस, land degradation happens, give me a second, land degradation happens, the productivity will decrease, obviously the production will decrease। भाई लैंड ही कम हो गया, लैंड ही डिग्रेड हो गया, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा या तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब उससे अगर लेट्स से द फार्मर वाज अर्निंग 2 लाख रुपीस, नाउ ही इज अर्निंग 1 लाख रुपीस ओनली, सो इन सम वे और द अदर द पावर्टी विल हिट द फार्मर। अब पावर्टी का रूट कॉज सीधे होता है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज एजुकेटेड इतने हैं नहीं और इतनी सारी चीज़ें समझते नहीं है कि लाइक देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, तो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे पर कैपिटल लैंड भी कम हो जाती है। ऑब्वियसली नाउ दिस लैंड विल गेट डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ना, अभी एक बच्चा था, नाउ वी हैव 4 सन्स, तो पर कैपिटल लैंड होल्डिंग will also decrease, per capital land holding will decrease, which will lead to what, inappropriate use of land। अब भाई जमीन ही कम है मेरे पास, है ना, जमीन कम है, अब मुझे प्रोडक्शन चाहिए ज्यादा, तो आई स्टार्ट यूजिंग मोर एंड मोर सॉर्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और लेट्स से केमिकल्स, सो इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंड विल बिगिन, और लेट्स से आई सेल इट टू सम इंडस्ट्री, है ना, तो इनअप्रोप्रिएट यूज शुरू हो जाएगा, जिससे नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हो रही होगी। अब लैंड तो मैनेज हो रही है बट इट इज नॉट सस्टेनेबल, नाउ दिस विल नॉट लास्ट लॉन्गर, नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। अब जैसे ही नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट शुरू होगा, उसी वजह से तो डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। लैंड डिग्रेडेशन हुआ, क्यों, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, लैंड हैज डिग्रेडेड, so the production has decreased, now the production has decreased, hence there will be a condition of poverty, and poverty will lead to more and more of birth rate, let's say higher the birth rate, the population will increase, because there will be, now since the population has increased, the investment on human capital has decreased, now since the investment on human capital has also decreased, and also the land holding has also decreased, because there was this fixed amount of land with the father, now he has 4 sons, he has to distribute between those 4 sons, so the per capita, the individual land holding will decrease, and since the individual land holding will decrease, he'll start using inappropriate methods to commercialize that land, and since inappropriate methods would be used, this would lead to what, non-sustainable land management, which will definitely increase what, land degradation, and this is how land degradation will impact our environment। so let's say there, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें land degradation या environment की बात हो रही हो, सिर्फ land degradation की बात हो रही हो, या फिर farmer and economics something of that sort is being discussed, वहाँ पे आप ये बना सकते हो, this is something which can be used, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई टॉपिक हो, वेरी हॉट टॉपिक, तो वहाँ पे ये यूज किया जा सकता है। नाउ लेट्स से इफ देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग ऑन फ्लड प्रोन एरियाज, हम डिजास्टर में 1-2 टॉपिक्स में करेंगे, तो फ्लड प्रोन एरियाज अगर इंडिया के तुमको दिखाने हो तो कैसे शो करोगे, विल मेक दिस मैप ऑफ इंडिया
Now, the flood prone areas are these areas of Maharashtra, certain areas of Orissa, which will lead to areas of Bihar too, and certain areas of Assam and Meghalaya. These are the flood prone areas of India. Flood prone areas of India. डिजास्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये मैप हम वहाँ पे बना के आएंगे. अच्छा, एक और डायग्राम बना सकते हो. अगर कहीं पे कुछ सिटीजन सेंट्रिक चीज आ जाए जहाँ पे तुमसे सिटीजन और गवर्नमेंट का रिलेशन पूछ रहा हो, लाइक हाउ इज द गवर्नमेंट, लाइक व्हाई एंड हाउ शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पांसिबल टू द सिटीजन ऑफ देयर कंट्री, सो व्हाट वी कैन ड्रॉ हियर इज दिस थिंग. राइट डाउन सिटीजन हेयर और यहाँ पे बना दो गवर्नमेंट. तुम्हारे और सिटीजन, लाइक सिटीजन और गवर्नमेंट, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है जिसको मैं बोलूंगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट टर्म दिया है हमको लॉक ने. ही इज अ फ्रेंच फिलोसोफर, नो सॉरी इंग्लिश फिलोसोफर, यूएस फिलोसोफर लॉक. लॉक ने हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है. अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझो है क्या, ये रिलेशनशिप जो हम शेयर करते हैं वो क्या है. सो लेट्स से हियर वी हैव लेट्स से सिटीजन सम पर्सन एक्स और यहाँ पे लेट्स से अमेजॉन. अभी सिटीजन जो पर्सन एक्स है ये अमेजॉन से कोई चीज़ तो मांगता है, लेट्स से आईफोन मंगाता है या लेट्स से सम वॉच, है ना. बदले में अमेजॉन इसको ये वॉच देता है और ये साथ में कुछ रुपए भेज देगा, है ना. एंड देयर बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रॉम अमेजॉन. नाउ इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिटीजन इज नॉट बीइंग मेट बाय अमेजॉन, कि उसने रेड वॉच की थी ऑर्डर और आ गई ब्लू, तो वो कहाँ चला जाएगा कंप्लेन करने, कंज्यूमर फोरम, है ना. कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 विल बी यूज्ड है. कंज्यूमर फोरम चला गया. मतलब देयर वाज some sort of promise being made between like consideration also between these two parties, and this they were into a commercial contract. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना क्योंकि दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुई. अब यहाँ पे लॉक ने बोल तो दिया कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ लेन देन हो रहा होगा. देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज दैट इज बीइंग हैपेंड बिटवीन बोथ दीस पार्टीज. तो अब देखो सिटीजन गवर्नमेंट को क्या देता है, एवरीवन विल स्टार्ट कमिंग अप विद टैक्स. Now the second thing that the citizen gives the government, and which is the quintessential and the most important thing, is your vote. The right to vote under Article 326 of the Indian Constitution. Simultaneously, the government will give you what? The government will give you law and order in form of police and in form of various certain acts. और तो गवर्नमेंट क्या दे रही होगी, अगर वेलफेयर स्टेट होगी गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट, इफ द गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट. Now we don't have to get into the details of welfare state, but basic सब समझो कि हाँ मतलब हेल्प करना है गवर्नमेंट को. जो डाउन ट्रॉडन पीपल हैं, द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ सोसाइटी, द गवर्नमेंट हैज टू हेल्प देम इन डिफरेंट मेथड्स. इकोनॉमिकली भी कर सकता है, सोशल एक्शंस के भी थ्रू कर सकता है. वेलफेयर करना है बेसिकली, सब्सिडीज वगैरह इसी का पार्ट हो जाएगा, है ना. तो वेलफेयर स्टेट है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट. नाउ द वेलफेयर स्टेट विल ऑल्सो गिव देम व्हाट स्कीम्स इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर. ये कुछ दे रहा है, ये कुछ ले रहा है, तभी ये क्या बन रहा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या बन रहा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे अमेजॉन और एक सिटीजन के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. ये हम बना के आ सकते हैं अपने एग्जाम में, है ना. वेयर वी कैन यूज दिस, जहाँ पे भी कुछ सिटीजन या गवर्नमेंट रिलेटेड रिलेशनशिप की बात आएगी, राइट्स की बात आएगी, ड्यूटीज की बात आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ भी आएगा, पॉलिटिकल रिलेटेड कुछ भी आएगा, तो हम ये बना के आएंगे. वील डू दिस. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बता दिया नीचे वाली चीज़. हमें फोकस किस पे करना है, वी हैव टू फोकस ऑन फिगर 1. अब दिस इज योर फिगर 1, और ये जो फिगर 2 बनाया है ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है. बाकी हाँ, अगर कोई स्पेस को जुडिशियसली यूज़ करेगा अपने एग्जाम में तो वो ये भी बनाएगा और एनालॉजी ड्रॉ करेगा तो भी बहुत बढ़िया लगेगा. तो टेक दिस ऑन योर ओन रिस्क. बट हाँ, मैं दोनों बना के आता, मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करके आता.
चलो आगे लिखो। अभी इंडियन का कुछ स्किल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इकोनॉमी में स्किल रिलेटेड क्वेश्चन आए कि भाई हमें कैसे स्किल बनाना है, क्योंकि इंडिया ने एक प्रोग्राम, मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्किल इंडिया मिशन। स्किल, यहाँ पे हम लिखेंगे स्किल, और इसके साथ में हम कुछ चीज़ें लिखना शुरू करेंगे। वी हैव टू कनेक्ट पीपल, देन वी हैव टू करेक्ट पीपल, वी हैव टू सर्टिफाई देम, वी हैव टू क्रिएट देम। अगर हमें स्किल एक्वायर करानी है किसी भी इंसान को, वी हैव टू मेक आवर इंडिया स्किलफुल, राइट? यही तो हमारा मिशन है अंडर स्किल इंडिया। यू कैन ऐड दिस है कि भैया स्किल स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया मिशन के जो टारगेट्स हैं, उससे हमें पता चल जाएगा हम अपनी कंट्री को कैसे स्किलफुल बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर इंडिया स्किलफुल? उसके तीन चार तरीके हैं। पहले तो हमें क्या करना होगा, लोगों को करेक्ट करना होगा। हम लोगों को लेके आएंगे, विल ट्राई, हम बूट कैंप चलाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि यहाँ पे लेट्स से स्टिचिंग सिखाई जा रही है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल्स होते हैं यार, पैकेजिंग सिखाई जा रही है, यहाँ पे आपको अचार अचार का बिजनेस सिखा दे रहे हैं, विल हेल्पिंग यू हेल्प एक्वायर सम सॉर्ट ऑफ स्किल। कारपेंटरी सिखा दी। अब ये स्किल सिखा के लिए वी हैव टू कनेक्ट दीज पीपल, तो यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह यूज़ होगा, अवेयरनेस होगी, बूट कैंप्स होंगे, है ना, एनजीओज में जाओ, बूट कैंप्स करो। फिर उसके बाद अगर उनकी स्किल या तो एक्वायर करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, विल हेल्प देम इम्प्रूव। वंस दे आर इम्प्रूव्ड, ड्राइविंग सिखा दी, विल सर्टिफाई देम। वंस दे आर सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनको बाहर भी जॉब मिलना ईजी है, एक्सेस टू फॉरेन जॉब्स। द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, लाइक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, they got to connect themselves, they got to correct themselves through acquiring skills, through acquiring skills. Now they get access to foreign jobs also, foreign jobs and opportunities. अभी देखा ना वहाँ इसराइल में भेजा है इंडिया, लाइक यूपी ने, यहाँ पे लिख सकते हो, यूपी सेंड 3 लाख स्किलफुल लेबर्स टू इजराइल, है ना। अभी इसके बाद क्या होगा, जैसे हम उन्हें सर्टिफाई करेंगे, वी हैव क्रिएटेड देम, वंस वी हैव क्रिएटेड देम, वंस वी हैव गिवन एंड एम्पावर्ड देम विद स्किल, एम्पावर्ड देम विद स्किल। अभी तो यहाँ पे जॉब क्रिएटर्स बन जाएंगे ना, जॉब क्रिएटर्स बन जाएंगे। और जैसे ही वो जॉब क्रिएटर्स बन जाएंगे, तो हमने स्किल्स के साथ में अपनी क्या रन करा ली, इकोनॉमी विल इंक्रीज। और मोदी जी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है बाई 2025। मुश्किल है लेकिन हाँ, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्किल रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वील ट्राई टू ड्रॉ दिस, है ना, समझ में आ रहा है? चलो, एक यहाँ पे ड्रग अब्यूज रिलेटेड कोई इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाए, तो ड्रग अब्यूज का लिख लो, ड्रग अब्यूज, कि ड्रग अब्यूज कैसे काम करना है। अगर यूथ रिलेटेड कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे ये बना के आ सकते हो। ड्रग अब्यूज में राइट डाउन, पहले तो हमें सप्लाई कट ऑफ करनी है, तो सप्लाई रिडक्शन करना है। सप्लाई रिडक्शन सबसे टॉप पे होगा, वी हैव टू डिक्रीज द सप्लाई, एंड वंस वी आर एबल टू डू दैट, द डिमांड विल ऑब्वियसली डिक्रीज। सप्लाई नहीं हो रही है मार्केट में, ऑब्वियसली डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहेगा कि डिमांड बढ़ेगी, बट एक्सेस में ही नहीं है लोगों के। अब जब एक्सेस में नहीं है, तो हार्म कम होगा। तो यू कैन ड्रॉ दिस समवेयर, छोटा सा बना सकते हो, अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशू आ जाता है ना। अच्छा, एक लिख लो, ई व्हीकल्स एडवांटेजेस, ई व्हीकल्स एडवांटेजेस, ई व्हीकल्स एडवांटेजेस, राइट डाउन। एक तो यहाँ लिखो नॉन फॉसिल फ्यूल, ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल तो यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि ई व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड है नहीं। इको फ्रेंडली है, ऑब्वियसली पोल्यूशन नहीं होगा, CO2 का एमिशन कम होगा, इको फ्रेंडली है। नॉन फॉसिल फ्यूल, इको फ्रेंडली, एंड देन देयर इज स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द नेम ऑफ फेम, फास्टर एडॉप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की एक फ्लैगशिप स्कीम है। अब जैसे ही फॉसिल फ्यूल, एक तो नो फॉसिल फ्यूल है,
इसके साथ साथ तुम्हें जैसे ही तुम्हारा फॉसिल फ्यूल कम, अब क्योंकि देखो नॉन फॉसिल फ्यूल है तो पेट्रोल डीजल चाहिए नहीं, और इंडिया पेट्रोल डीजल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट कम तेल और पेट्रोल कम मंगाएगा तो डॉलर्स कम देने पड़ेंगे, डॉलर्स कम देने पड़ेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, योर फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज। और जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा तो रेड्यूस हो जाएगा क्या, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट जो चालू खाता होता है, क्योंकि आपको पेट्रोल खरीदना है, रोज रोज का खर्चा है, फिक्स डेफिसिट नहीं हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा, आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा क्योंकि आपका फॉरेक्स ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप इंपोर्ट करने में डॉलर्स कम खर्च कर रहे हो, आपके डॉलर कम खर्च हो रहे हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट का घाटा कम हो रहा है ना, क्योंकि अब आपकी क्या हो रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं, इनकम तो उतनी रही, खर्चे उतने, देखो इनकम तो इंडिया उतनी जनरेट कर रहा है, पेट्रोल डीजल पे कम डिपेंडेंट है, तो खर्चा कम हो गया तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का कम हो गया। अब क्योंकि ये इको फ्रेंडली है तो पोल्यूशन भी कम है, अब पोल्यूशन कम है तो क्लीन एयर है, योर एक्सपेक्टेड लाइफ विल इंक्रीज। अब इंडिया ने कुछ इंटेंडेड नेशनल डिटरमिनेंट गोल्स हैं, आईएनडीसी गोल्स हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं इंडिया के जो इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट प्रिजर्व करने के लिए ले रखे हैं, तो इससे हम ये गोल्स भी अचीव कर रहे होंगे। और फेम जैसी स्कीम से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अब फेम आई है तो सरकार सब्सिडी दे रही है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विल इंक्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विल इंक्रीज तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, जॉब्स बढ़ेंगी, है ना। तो अब मल्टीपल फायदे हैं किसके, ई व्हीकल के, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमको ये तीन चीजें बनानी है और इन सबको बॉक्स में डाल देना है, सो दैट द एग्जामिनर गेट्स टू नो दैट वी आर ट्राइंग टू से अ लॉट ओनली थ्रू दिस वन डायग्राम। अभी देखो हमने इकोनॉमी का भी इशू एड्रेस कर दिया, यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल इशू भी एड्रेस कर दिया और इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड इशू भी एड्रेस कर दिया। हमने क्या बोला, हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा बनाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को पेट्रोल और डीजल तो चाहिए नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए, बैटरी चलेगी, हाइड्रोजन चलेगा, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह ऑब्वियसली लेनी पड़ेंगी, तो हमें जब पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस हम 80% अपना तेल मंगवाते हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचना शुरू होगा, हमें डॉलर्स कम देने पड़ेंगे, हमें डॉलर्स कम देने पड़ेंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब सिंस दिस इज इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो पोल्यूशन कम होगा, CO2 का एमिशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, बिकॉज इफ वी बर्न एनी लिविंग थिंग, CHO, NPS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब इंडिया के कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ INDCs which will be met through reduction in CO2. Now to achieve all of this, the government of India has launched a scheme under Ministry of Heavy Industries by the name of faster adaptation of manufacturing e-vehicles, wherein we are trying to promote local players to promote more and more of electronic vehicles, which companies like Mahindra and Tata are obviously doing. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV बढ़ेगा, अब बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे तो क्या होगा, आपके जॉब्स बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट साइकिल तो मैंने आपको बताई रखी है, इन्वेस्टमेंट विल लीड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू इनकम, इनकम विल लीड टू either you will go and save into the banks or the money that you will earn you will start spending in the market, so the demand will also increase। ये यहाँ पे बना सकते हो। इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि या फिर लेट्स से उस पे भी आ गया, ग्रीन GDP पे आ गया, या नेट जीरो पे आ गया, नेट जीरो कमिटमेंट्स पे आ गया, कहीं पे भी आ गया, जहाँ पे भी तुम ये ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी बात करोगे वहाँ पे ये डेफिनेटली बना के आना ही आना है ना। फ्यूचरिस्टिक दिखाओगे कि ई व्हीकल्स आर द फ्यूचर और यही उसके फायदे हैं, यही उसके बेनिफिट है। अब तुम खुद से देखो, अगर तुम एग्जाम में ही बना के आ रहे हो ऑब्वियसली अ बिट क्लीनर, तो आप कितनी सारी बातें बोल रहे हो, है ना, एक एक वर्ड में कितनी सारी बातें हैं, एग्जामिनर क्यों नहीं खुश होगा। हो सकता है तुम्हारा सिर्फ ये डायग्राम देख के ही स्टार्ट्स गिविंग यू गुड मार्क्स, because you are able to convey a lot in very less, and your answers will also look very different from other people who are attempting this paper। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और बाकी क्लास होगी तो we'll take one more class on diagrams and then we'll proceed to short answers and your essays, and let me know how your part A and part B classes are going। Thank you so much।